Hey friends, welcome back to my YouTube channel named Tech with She. So in this channel we are going to study about the JavaScript. So are you excited? Let's get started. So we are on our computer screen. As you can see that I am going to opening the VS Code. VS Code, you already known about it, that it is a digital notebook where we write code. First of all, the first work which we are going to do is to create a new file. See, the new file option is in the screen. So you can simply click on this option. Now, let's press Ctrl plus N to create a new file. When you press the Ctrl plus N, your file is now created. As you can see that Untitled1 is showing there. Untitled1 name will be shown to you until you save it, by your name or any other name, whatever you like. So let me save it from the name calculate.html. Look, you can use HTML and HTML, both the extension accepted by HTML. Okay, so there will be no issue regarding this, that what extension should we use. So let's save this file. Now, as you can see that in our VS Code interface, calculate.html name is showing there. Now, the basic work is to write all the important code, means tag. So let me write all the tags. That first HTML, second head tag, and the third is title tag. Yes. Let me select a title named Arithmetic Operations, the work which we are going to do today in this session. So arithmetic operation. Do you know about the arithmetic operations? So yes, from basics, from our we can say primary education, we all know about that what are arithmetic operators. These are the addition, subtraction, multiplication and the division. Now the fourth tag is body tag, where we write our main content of our web page. And the main thing is a script tag. Do you know why we are using script tag? Yes, because JavaScript is written in the script tag, because we have a question that we have to apply arithmetic operators in JavaScript. That's why we are using a script tag, because script tag is a home फॉर जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट हमारी स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखी जाती है. ठीक है, तो मैं एक हेडिंग बना लेती हूँ, हेडिंग 1 या हेडिंग 2, जो भी आप लोगों को सही लगे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं. ये हेडिंग बस आप लोगों को दिखाने के लिए है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं. तो ये एक ऐसे स्टेटमेंट वर्क करेगी. तो लेट मी राइट दैट हाउ टू अप्लाई. once again I'm writing it. You can easily copy it or save the video. And yes, don't forget to subscribe my channel, because ये इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपको आगे की नई नई चीज़ें पता चलती रहेंगी, कैसे हम लोग क्या क्या यूज़ करके क्या क्या बना सकते हैं. लाइक जावास्क्रिप्ट में कैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं. ऑल्सो CSS और HTML में पढ़ेंगे, बट पहले जो दिमाग में आया वो पढ़ते हैं. ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है. बिहेवियर बताती है. और क्या बताऊं, जावास्क्रिप्ट का जो हमारा ओल्ड नेम है वो ECMAScript है, एंड बिफोर ECMAScript इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोचा. मोचा के नेम से भी ये जानी जाती थी. ठीक है, तो इसे बनाया किसने, तो ब्रेडन इक ने. BREDANEICH. नाउ स्क्रिप्ट टैग हमारा रेडी है. अब हम लोग इसमें लेंगे वेरिएबल्स. लेट का यूज भी कर सकते हैं, वेरिएबल्स का भी यूज करते हैं, तो मैं यूज करती हूँ वैर. चलो ए लेते हैं हम 10. ठीक है, कोई भी डिजिट ले सकते हैं क्योंकि हम लोग बस सिंपली ऑपरेशंस करने जा रहे हैं, तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं. एंड बी लेते हैं 5. यस. नाउ आप लोग देख रहे हैं वेरिएबल हमारे 2 हैं, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन 2 न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर अप्लाई करना सीखने जा रहे हैं, तो 2 ही लेंगे. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वैर फिर से लेंगे और इसे बताएंगे कि हम लोग करने क्या चाह रहे हैं. ठीक है, तो वेरिएबल लिया
उसके बाद हम लोग इसको बताएंगे कि हम ऐड करने जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो सिंपली मैं लिखूंगी वैर एडिशन इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगी, और जो हमारा इसका सिंबल होता है, जो हमारा इसका कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है बताने का, वो मैं इसे दे दूंगी दैट a प्लस बी इक्वल्स टू एडिशन। जो हमारा एडिशन का फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी होता है, एंड देन इसे सेमीकोलन लगा देंगे। डू यू नो व्हाई आई एम यूजिंग सेमीकोलन अगेन एंड अगेन? So yes, semicolon work as a full stop in JavaScript. That's why I'm using semicolon. Now, simply copying it and paste it in the 4 different ways. First, second, and third. So first one is addition, second one is subtraction, third one is multiplication, and the fourth is division. Now replace all the spellings from the desired spelling. Subtraction लिखेंगे, उसके बाद इसका हम लोग साइन भी चेंज करेंगे बिकॉज सब्ट्रैक्शन में माइनस होता है। वी ऑल नो अबाउट दिस बिकॉज ये सब चीज़ें तो हमारे बचपन में ही सिखा दी गई थी, बट इसे मॉडिफाई करके हम लोग अब जावास्क्रिप्ट में सीख रहे हैं। है ना मैजिकल? जो चीज़ बचपन में सीखा है वही फिर से सीख रहे हैं, बट उसको अलग तरीके से सीख रहे हैं, कॉपी पेंसिल में नहीं, डिजिटल तरीके से सीख रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन, ओके, एंड द लास्ट वन इज डिविजन। तो डिवीजन भी लिख लेते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेते हैं। लुक, हमारे कीबोर्ड में इनटू मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं, ये स्टार टाइप का जो होता नहीं है साइन, उसे यूज़ करते हैं। अब इसमें डिवीजन भी लगा लेंगे। डिवीजन के लिए भी हमारा हम साइन नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टरिस्क एंड डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश। अब हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये क्या होता है, ये प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है? जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट होता है, कॉन्सोल डॉट लॉग होता है, वैसे ही एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जिसमें हम लोग ये ब्रेसेस देते हैं, फिर उसके बाद डबल कोट्स के अंदर जो हमें लिखना होता है वो लिख लेते हैं, सॉरी। तो द एडिशन ऑफ, wait, I'm writing the addition of, yes, what we are going to do, that we are going to add two numbers, oh sorry, two number, दो नंबर का एडिशन, ठीक है? ये कह रहा है कि हमारे जावास्क्रिप्ट में दो नंबर्स के एडिशन को हम लोग क्या है, हमारा जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग हमारा एडिशन क्या होगा, सम। तो वो सम ये बताएगा। एज यू कैन सी, लुक, एक एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा कॉमा है, कॉमा पहले लगा दें एंड डबल कोट्स बाद में। एक एक चीज़ बहुत इसमें हमें माइनर तरीके से चेक करनी पड़ती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारी जो है वो एक केस सेंसिटिव चीज़ है। इसमें कुछ भी मिस्टेक होती है कोड नहीं लेता है, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा आपके वेब ब्राउज़र पे। दैट इज़ वाई वी हैव टू बी अलर्ट। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, मैं बताती हूँ क्या मिस्टेक है। यस, मुझे कॉमा नहीं देना है, शायद कॉमा नहीं देना है। लेट मी फाइंड, आप लोग भी फाइंड करिए क्या मिस्टेक हो रही है मुझसे। ओ, शायद मुझे सेमीकोलन बाहर लगाना चाहिए। इज दैट अ मिस्टेक? नहीं, अभी भी कुछ तो है जो सही नहीं है। लेट मी फाइंड इट। तब तक आप इसे ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखा, कोई भी एक छोटी सी चीज़ इसे कितना परेशान करती है। यस, दिस इज द मिस्टेक। जो हमारा जो डबल कोड्स है उसके लिए हमें स्पेस देना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों? डिजिट्स के लिए। जो डिजिट हमारी आएगी, ऑपरेशन आएगा, वो लिखेंगे किसमें, तो उसके लिए स्पेस चाहिए होगा। तो हम लोग एडिशन और ब्रेक के बीच में एक डबल कोड देंगे, और उससे पहले भी डबल कोड्स देंगे। मतलब यहाँ पर पेयर ऑफ टू डबल कोड्स यूज होंगे। द एडिशन ऑफ टू नंबर इज
कॉलन स्पेस, उसके बाद डबल कोट एंड आफ्टर एडिशन ब्रेक ब्रेक, मतलब कि 2 बार ब्रेक यूज किया है तो उनके बीच में भी यूज होगा। अब लगाते हैं 1 सेकेंड, इसे कॉपी कर लेते हैं। 4 बार कॉपी करना है, आपको पता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसकी स्पेलिंग सही करेंगे, सब्ट्रैक्शन नाउ, यहाँ भी सही होगा। इससे बेटर होता कि मैं लिख ही लेती, लेकिन कोई नहीं, कॉपी है तो कॉपी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। चलिए मल्टीप्लिकेशन भी लिखते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज, हमारा जो नंबर होगा एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, अगेन वी आर राइटिंग मल्टीप्लिकेशन। ये ब्रेक मैंने क्यों यूज किया है, देखिए अगर मैं ब्रेक नहीं यूज करूंगी ना तो सारी चीजें हमारी एक ही लाइन में आ जाएंगी और मैस हो जाएगा, कुछ हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस ब्रेक टैग। ब्रेक टैग हमारा क्या करता है कि लाइन ब्रेक करता है, एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद इट ब्रेक्स द लाइन, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ब्रेक टैग। नाउ डिवीजन ऑफ टू नंबर इज, डिवीजन भी यहाँ लिखना है, एडिशन के प्लेस पे डिवीजन। सो लेट मी राइट इट। देखिए कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज़ अभी इसमें नहीं पढ़ाई गई है, सिंपली आपको वेरिएबल लेना है। वेरिएबल के प्लेस में आप लेट भी ले सकते हैं, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर सेम मैंने यूज़ किया है जिसमें कि अगर आप बिगनर हो तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ वेरिएबल के टाइम पे हम लोग ले रहे हैं वहीं पर इस डॉक्यूमेंट और राइट में भी हम वही चीज़ लिखें, क्योंकि इसको हम लोग एक बार फिक्स कर लेते हैं जिसमें अच्छा लगे देखने में। स्क्रिप्ट को मैंने फिक्स कर लिया क्योंकि फिर बताया ना जावास्क्रिप्ट हमारा केस सेंसिटिव है, और केस सेंसिटिव होने की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है। इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा तो हमें रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, तो हमारा कोड लिखना बेकार हो जाएगा। चलिए अब इसे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे देखिए रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर लिखा है, शिफ्ट ऑल प्लस आर, ये हमारी शॉर्टकट की होती है। इसे प्रेस करके हम लोग जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को बॉक्स में, कैलकुलेट हमारी फाइल दिख रही है, इस पे हम लोग एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, देखिए हमारा क्रोम ब्राउजर है जो डिफ़ॉल्ट सेट है, आप अपने सिस्टम में कोई भी ब्राउजर सेट कर सकते हैं, क्रोम इज़ द बेस्ट, दैट्स व्हाई आई सेट इट। तो ये देखिए हमारा, ओ माय गॉड, यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो अबाउट इट। कोई तो मिस्टेक फिर से हो गई है और वो मैं समझ नहीं पाई हूँ, मिस्टेक वैसे हुई क्या है। इसे जूम कर देती हूँ जिसमें आप लोग देख सके, द एडिशन ऑफ टू नंबर इज, उसके बाद कॉमा आ रहा है, कॉमा तो मैंने दिया है, यस। चलिए फिर से चलते हैं अपने VS कोड में, चेक करते हैं मिस्टेक क्या है। आई थिंक द मिस्टेक इज दैट, हाँ यहाँ पर मैंने डबल कोड की बात कही थी, आपने सुना था, देखो मैंने कहा और मैं ही भूल गई, यहाँ पर डबल कोट्स भी देने थे, है ना, मैंने डबल कोट्स तो दिए ही नहीं और कॉमा लगा रह गया, इसलिए उसने लिया ही नहीं कोड। और इवन दो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दोनों हमारी कोड्स के अंदर आ जा रहे हैं, जो कि ये राइटिंग पार्ट है ना, तो ये प्रिंटिंग पार्ट है, यहाँ पर ये रेड नहीं होना चाहिए था, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। अब देखते हैं, अब हमारा कॉमा हट गया। चलिए हम लोग वापस आके चेक करते हैं कि डिजिट क्यों नहीं आई है, तो उसका रीज़न हमें पता चल गया है कि इसका रीज़न वही है, क्या है, डबल कोट्स वाला मैटर। हमें डबल कोट्स भी चाहिए होगा, उसके बाद हमें कॉमा चाहिए होगा, तो हम लोग फिर से करना, थोड़ी सी डबल मेहनत पड़ गई है, बट इट्स ओके बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। देखिए एक चीज़ और, अगर आप लोग सोच रहे हो A प्लस B के बीच में इतना स्पेस क्यों है, तो इट इज़ बेटर टू राइट इन दिस फॉर्म बिकॉज कोई भी मेस नहीं होता है, समझ में आता है और हमारा कोड भी इम्प्लीमेंट हो जाता है। यू कैन सिंपली अप्लाई द डबल कोड्स, वेट आई एम अप्लाइंग। अगर हम लोग देखिए आपको दिखाते हैं, अगर हम लोग स्पेस कम भी कर देते हैं तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इवन दो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। A प्लस बी किया, ऐसे ही चलिए
ये किस लिए होता है? ये क्लैरिटी के लिए होता है, जिसमें आप लोगों को क्लियर दिखे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, इसलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। बाकी कोई और ऐसा ऑफिशियल रीज़न नहीं है। कुछ भी आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सिंपली फ्लेक्सिबल राइटिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। यही तो इसका फ़ायदा है, दैट जावास्क्रिप्ट फ्लेक्सिबल। अब हम लोग अपना जो मिस्टेक है उसे फिक्स करते हैं। ये क्या खुल गया? एडिशन, अच्छा ऊपर लिखा है। एंड नाउ अप्लाइंग द ब्रैकेट्स। डबल कोट्स हमने उसे भी दे दिया ब्रेक को, क्योंकि वो ब्रेक कह रहा था कि मुझे ब्रेक दो, मीन्स उसे भी अपनी प्राइवेसी चाहिए थी। वो चाह रहा था कि मुझे डबल कोट्स में बंद कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ओपनली साथ में नहीं खड़ा हो सकता हूँ, उसे प्राइवेसी चाहिए, दैट्स वाई मैंने उसे प्राइवेसी प्रोवाइड करा दी। एंड ये सभी जगह होगा। देखिए आप लोग ब्रेक ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एंड द अदर वे इज टू राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर हम लोग लिखें ब्रेक। तो ऐसे लिखने से बेटर रहता कि मैं ऐसे ही लिख लूँ एक ही लाइन में। बस प्रॉब्लम ये फंसी कि आप लोग का कोड नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, और रीजन इज दैट वी फॉरगेट टू अप्लाई द डबल कोड्स। तो वही चीज़ें होती हैं कि या तो आप लाइन लाइन कर लें, लाइन बाय लाइन, एंड अगर आप परफेक्ट हैं तो हम लोग एक ही लाइन में सब अप्लाई कर लें। नाउ वी विल सेव इट बाय द कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल एस यू कैन use it this. And now moving to the web browser means Chrome browser. चलिए F5 से हम लोग रिफ्रेश करेंगे, and now you can see that addition of two number is 15, the subtraction of two number is 5, and all the operation is applied here. मैं क्या करती हूँ, चलिए स्क्रीन डिवाइड करके आप लोगों को बता देती हूँ कि देखिए सब कुछ सिस्टम वाइज ही है। तो देखिए एक सेकेंड, यस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं, है ना। तो ये हमारा सिंपल तरीका था, जो कि फटाफट से अंडरस्टैंड भी हो गया, समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हम लोग सिंपली दो नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स में आता है, लाइक ट्रिपल सी, एंड ट्रिपल सी में आई डोंट नो आता है कि नहीं, बट ओ लेवल में आता है जावास्क्रिप्ट सेक्शन में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी थोड़ी सी मेहनत हो गई, क्योंकि वो जो मिस्टेक हो गई थी ना लास्ट में, उसकी वजह से थोड़ी सी मेहनत हो गई। बाकी मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि एकदम बेसिक से समझाया है कैसे क्या एक एक चीज़ करनी है, और ऐसे शायद ही कोई समझाए, क्योंकि मैंने देखिए कुछ ऐसा क्या बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कह सकते हैं वार लैट और चीज़ें यूज़ नहीं करी, सिंपल चीज़ यूज़ करके बताया। So thank you for watching, and don't forget to subscribe my channel. Bye bye.